Hello dear students. Today we discuss about exercise question and answer of chapter number 3, atoms and molecules. So here is the question number 1. In question number 1 you will find 0.24 gram sample of compound. The weight of the compound is given 0.24 gram. Sample of compound of oxygen and boron, that means the compound contain oxygen and boron, was found by analysis to contain 0.96 gram of boron, and in that compound 0.96 gram of boron is there and 0.144 gram of oxygen is there. Calculate the percentage composition of the compound by weight. Now see, here we can see the compound is 0.24 gram. In that compound 0.96 gram of boron is there and 0.144 gram oxygen is there. So now we have to calculate the percentage of boron. So how we will calculate the percentage of boron will be equal to mass of boron upon mass of compound. कंपाउंड का कितना मास है और बोरॉन का कितना मास है मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ व्हाट कम्स, लेट्स सी. When we do the calculation, then the equation comes 0.96 upon 0.424. This is the mass of the boron and this is the mass of the compound into 100. This is the percentage composition of boron. So if you solve it, 24 1 ja, 24 4 ja, right? So it will become 0.4 into 100. 0.4 into 100 equal to 40. That means in the compound 40% boron is present. Similarly, if you do calculation for the oxygen, how we will calculate? Mass of oxygen upon mass of compound into 100. Mass of oxygen is given 0.144, mass of compound is 0.24 into 100, right? So when you calculate this, 24 1 ja, 24 6 ja, so you will get 0.6 into 100. 0.6 into 100 equal to 60%. That means in 2.24 gram of compound made by the boron and oxygen contain 60% of oxygen and 40% of boron. Let's go for the next question. When 3 gram of carbon is burned in 8 gram of oxygen, तो कार्बन कितना 3 ग्राम ऑफ कार्बन जब बर्न होता है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लगता है एंड प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन react together form what they form, they produce carbon dioxide. तो 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? तो ये कह रहे हैं कि कार्बन का कितना मास लगेगा when 3 gram of carbon, 3 ग्राम कार्बन है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, 50 ग्राम ऑक्सीजन से कराएंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये आपको बताना है. सो as we have seen, let's discuss according to question answer. The reaction of burning of carbon and oxygen may be written as carbon, oxygen, carbon dioxide. 1 mole of carbon
oxygen 1 mole 3244 gram of carbon dioxide is produced. It shows that 12 gram of carbon burn in 32 gram of oxygen to form 44 gram of carbon dioxide. Therefore 3 gram of carbon react with 8 gram of oxygen to form this 11 gram of carbon dioxide. It is given that 3 gram of carbon is burned with 8 gram of oxygen to produce 11 gram of carbon dioxide. यानी 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. तो 11 ग्राम अल्टीमेटली इट इज सेड दैट कि कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. 3 ग्राम कार्बन जब रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन से तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. अब सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा जब 3 ग्राम कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के 50 ग्राम से रिएक्शन कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा. तो इसका आंसर आपको मिलेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखेंगे कि 1:2 है, राइट. तो इतने ग्राम कार्बन जो है इतने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इतना बना रहा है. तो ऑक्सीजन का कितना भी अमाउंट लें, आउट ऑफ 50 ग्राम ओनली 8 ग्राम ऑक्सीजन विल बी यूज एंड दे ऑलवेज प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमेनिंग 42 ग्राम 50 में से 8 माइनस करेंगे तो 42 ग्राम ऑक्सीजन विल बी left as unreacted. So this will be the answer. Let's go for the next question. In the next question, what are polyatomic ions? See, as we have discussed, the ions which contain more than one atom, same kind or maybe different kind, and behave as a single unit are called polyatomic ions. Say for example, OH minus, SO4 2 minus, CO3 2 minus, hydroxide ion, sulfate ion and carbonate ions. Next question is, write the chemical formula of the following. Magnesium chloride. See, कैसे लिखते हैं magnesium? Magnesium is written like this. Valency is 2. Chlorine is written like this. Valency is 1. Intersect कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड. कॉपर नाइट्रेट. कॉपर नाइट फिर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम को कैसे लिखेंगे? देखिए, कैल्शियम सिंबल क्या हो जाएगा? Ca, ऑक्सीजन का O, इसका +2, इसका -2, सीधा सीधा फार्मूला निकल के आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड. कॉपर नाइट्रेट, कॉपर लिखेंगे, नाइट्रेट लिखेंगे, NO3. नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे कॉपर लिखा, कॉपर का है +2 यानी 2 और नाइट्रेट का है -1. तो इंटरचेंज कर देंगे वैलेंसी को, क्या हो जाएगा? CuNO3 2. ये 2 यहाँ आएगा, कॉपर नाइट्रेट. लेट्स सी अहेड. नेक्स्ट वन इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड. बहुत इजी है. एल्यूमिनियम लिखेंगे, एल्यूमिनियम 3, क्लोराइड 1, सीधा सीधा फार्मूला हो जाएगा AlCl3. नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम लिखेंगे Ca, कार्बोनेट लिखेंगे CO3. वैलेंसी इसकी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है -2, इसकी +2. सीधा सीधा फार्मूला बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड. अब इन कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? क्विकलाइम. क्विकलाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, तो हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है. बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है.
राइट। पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 फार्मूला होता है, तो पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। मोलर मास निकालना है, तो पहला दिया हुआ है इथाइन। इसका नाम क्या है? इथाइन, और एसिटिलीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे हाउ मेनी कार्बन इज देयर। 2 कार्बन, 1 कार्बन इज 12, सो 2 कार्बन इज 24। 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इज 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, टोटल करो 26। मोलर मास की बात कर रहे हैं तो ग्राम आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है सल्फर S8 मॉलिक्यूल। सल्फर S8 मॉलिक्यूल, तो हमें पता है 1 सल्फर इज हैविंग 32, तो 8 सल्फर इज 32 मल्टीप्लाई बाय 8, यू विल गेट 256 ग्राम। नेक्स्ट देखेंगे फास्फोरस मॉलिक्यूल। फास्फोरस जो है P4 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 1 फास्फोरस इज हैविंग 31, राइट। सो 4 phosphorus will be having 31 into 4 equal to how much it comes? 124 ग्राम। सिमिलरली HCl की बात करेंगे। HCl में हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का कितना है? 30.55, तो 1 + 35.5 इक्वल टू 36.5 ग्राम। नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3, राइट। तो हाइड्रोजन 1 है, 1 + नाइट्रोजन 14 है, 1 नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 1 ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 3 सा 48। इसको प्लस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 63 ग्राम। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द mass of 1 mole of nitrogen? 1 mole of nitrogen atom mass is 14 gram. 4 moles of aluminium atom, atomic mass of aluminium is given 27. तो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 1 मोल का तो 27 है, तो 4 मोल्स का कितना हो जाएगा? 27 इंटू 4 इक्वल टू 108 ग्राम। 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो देखिए यहाँ पहले सोडियम सल्फाइड का निकालेंगे। सोडियम का कितना होता है? पहले फार्मूला लिखेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सोडियम सल्फाइड SO3, और SO3 की वैलेंसी होती है 2। सोडियम कितना है? 2, तो 23 इंटू 2 प्लस 1 सल्फर इज हाउ मच? 1 सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन का कितना होता है? 48। 32 48 कितना हो गया ये? 80। 23 इंटू 2 46, तो ये कितना हो जाएगा? 126 126 ग्राम। ये किसका मास हुआ? 1 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट। 1 मोल सोडियम सल्फाइड का कितना हुआ? 126 ग्राम। तो 10 मोल का कितना हो जाएगा? 10 मोल का हो जाएगा 126 इंटू 10 इक्वल टू 1260 ग्राम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट इनटू मोल। मोल में कन्वर्ट करना है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यानी कि क्या दिया हुआ है? गिवन मास इज गिवन, कितना दिया हुआ है? 12 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? कैपिटल M 16, राइट। अब हमें इसे मोल में कन्वर्ट करना है, तो m/m कर देंगे, तो 12/16 कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4 यानी कि कितना आ जाएगा आपका? अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.37 नंबर ऑफ मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो m की वैल्यू दी हुई है 20, ठीक है। मोलर मास कितना होता है वाटर का? H2O का मोलर मास कितना होता है? 18। 2 + 16 कितना हो गया? 18। तो कैसे निकालेंगे इसको? 20 n इक्वल टू वी नो दैट
स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, तो 20/18 कितना आ जाएगा 1.12 मोल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। m इक्वल टू दिया हुआ है 22 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है तो कितना हो जाएगा 16 2 ज़ा 32 इक्वल टू 44 ग्राम। तो n इक्वल टू क्या होता है m अपॉन m, यानी 22/44 इक्वल टू 24 1/2.5 मोल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ द मास। मास की वैल्यू पूछा हुआ है, m निकालना है। m कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। n इक्वल टू m/m होता है, m/m। फिर से लिखते हैं n इक्वल टू m स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो स्मॉल m इक्वल टू कितना हो जाएगा n इंटू कैपिटल M। अब देखिए 0.2 मोल, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 मोल फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होता है 16। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, 3.2 ग्राम। ये आंसर आ गया आपका। दूसरा है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। n की वैल्यू दी हुई है 0.5 और क्या दिया हुआ वाटर, वाटर का होता है 18 ग्राम मोलर मास। तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्मॉल m इक्वल टू n इंटू m, वैल्यू पुट करेंगे 0.5 इंटू 18, ठीक है। तो 0.5 18 5 ज़ा 90, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9.0 ग्राम। ये m की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 सल्फेट प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर मास ऑफ S8 इज 256, राइट। और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू दैट मच, है ना। हमने पढ़ा हुआ है ना कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। तो यहाँ देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, सिंपली हमने कितना निकालना है 16 ग्राम सल्फर में पता करना है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 मोल सल्फर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6 पॉइंट। What we know? We know that 1 मोल सल्फर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, इतने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। तो 16 ग्राम सल्फर में कितने होंगे 16 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। वही यहाँ पे किया हुआ है 16 इंटू 6.0 इंटू 22 इंटू 10⁻23। नाउ लेट्स सी व्हाट कम्स 96.35 और नीचे क्या है 256। गिवन मास दिया हुआ है 16, मोलर मास कितना होता है इतना, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो कितना आंसर आ जाएगा 3.76 इंटू 10⁻22 molecules. Let's go for the next question. In the next question, question number 11, calculate the number of aluminium present in 0.51 gram of aluminium oxide. एल्यूमिनियम का दिया हुआ है एटॉमिक मास 27U, तो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकालेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al कितना है 2 है, तो 2 इंटू 27
और ऑक्सीजन कितना 3 है, तो 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 16 48, 2 इंटू 27 54, टोटल करेंगे कितना हो गया 102 ग्राम। तो 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन इतने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, राइट। क्लियर हुआ, राइट। सो व्हाट विल हैपन, 2 इंटू, वाई इट इज़ 2 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला देखेंगे आप तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हाउ मैनी एल्यूमिनियम इज़ देयर, 2, तो एक एल्यूमिनियम का इतना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इतने नंबर ऑफ आयंस। अब ये कह रहे हैं कि 0.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन, कितने कंटेन होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, इस वाले डिजिट को डिवाइड करेंगे इसके मूलर मास से, राइट, और इतने नंबर ऑफ ग्राम से। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये हो गया m अपॉन m इंटू n इक्वल टू, क्या निकाल लिया हमने, यहाँ निकाल लिया n, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम निकालना था ना, तो फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगाया, n इक्वल टू n0 अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। क्लियर हुआ, ये कैसे आया फार्मूला आपको पता है ना, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू n अपॉन n0, ठीक है। तो ये n0 इस साइड आएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा n0 इंटू स्मॉल m, और नीचे क्या रह जाएगा कैपिटल M इक्वल टू n, तो n ही यहाँ पे पूछा है, तो हमने सिंपली क्या किया है, n इक्वल टू क्या कर दिया, देखिए आप, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23, राइट, और ये किसकी वैल्यू है, ये स्मॉल m की वैल्यू है और ये कैपिटल M की वैल्यू है। इसको जब आप देखेंगे तो 0.051 अपॉन 102, अगर यहाँ पे हम 3 डिजिट के 0 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 51, तो 51 1 जा 52 2 जा, राइट। तो इस तरह से 3 0 जो है यहाँ पे हम कम कर देंगे, ये देखिए, तो आपके 20 आ जाएंगे यहाँ पे, राइट, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 20 बचेगा, और यहाँ पे क्या था 2, तो 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 को 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6.022। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये हमने यहाँ से 3 0 कम कर दिए, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 एल्यूमिनियम आयन। So that is all about your exercise. I hope you enjoy the video. Thank you.